My dear students, today we are going to read the lesson number 4, The Tale of the Bishnois. Bishnoiyon की कहानी. The lesson is written by Madhav Godgil. Madhav Godgil is an Indian ecologist, academician, writer, novelist, and the founder of the Center for Ecological Science. He is a recipient of the World Environment Prize. The government of India awarded him the fourth highest civilian award of the Padma Shri in 1981 and also the Padma Bhushan in 2006. We will discuss the lesson from beginning. The author introduction is given in the last of the lesson. We are going to start from the beginning. Okay, let's start. Today, Marwar is a treeless waste of sand and rocks. Today, Marwar is a treeless waste of sand and rocks. आज मारवाड़ रेत व चट्टानों पर या रेत व चट्टानों का वृक्षहीन बंजर क्षेत्र है. The only growing things are thorny shrubs, a few tufts of short, rough grass, and an occasional stunted bear or baboon tree. यहाँ पर उगने वाली वनस्पतियों के नाम पर यहाँ केवल या तो कंटीली झाड़ियाँ, छोटी खुरदरी घास के कुछ गुच्छे और हल्के अर्थात विरल रूप से अलग विकसित बेर या बबूल के पेड़ होते हैं. But incredibly you can, even in this desert, come across the old village with groves of well-known khejdi trees. किंतु आपको अविश्वसनीय रूप से इस मरुस्थल में भी पूर्ण विकसित खेजड़ी वृक्षों के ग्रूव्स या कुंजों से घिरा हुआ अनूठा गांव मिल सकता है. ग्रूव्स का अर्थ क्या है? कुंज. ओके. दिस cousin of the babul is the clip vraksh, the tree that fulfills all wishes. ये बबूल के पेड़ से मिलता जुलता खेजड़ी एक प्रकार का कल्प वृक्ष है और ये वृक्ष जो सभी कामनाएं पूरी करता है. A full-grown camel can enjoy a midday siesta in its shade. Its foliage nourishes goat, sheep, cattle, and camel. Its pods can be made into a delicious curry, and its thorns guard the farmer's fields against marauding animals. पूर्णवयस्क ऊंट इसकी छाया में दोपहर की नींद का आनंद ले सकते हैं और इनकी टहनियाँ सहित पत्तियाँ बकरी, भेड़, मवेशियों और ऊंट को पोषण प्रदान करती है और इसकी फलियों से स्वादिष्ट कड्डी बनाई जा सकती है और इसके कांटे खेतों को उजाड़ने वाले जानवरों से किसानों के खेतों की रक्षा
करते हैं। Once upon a time, the desert of Marwar had not yet conquered the vast territory over which it holds sway today. किसी समय मारवाड़ के मरुस्थल में इतने विशाल क्षेत्र को अपने अधीन नहीं किया था जितने क्षेत्र पर आज इसका प्रभाव है। Even though the climate was the same as it is today, the land was covered by thousands upon thousands of khejri trees, and there was plenty of bear, care and sangri. हालांकि तब भी आज के जैसी ही जलवायु थी और भूमि हजारों हजारों खेजड़ी वृक्षों से ढकी हुई थी और इस भूमि पर बेर, कैर और सांगरी के वृक्षों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। These plains were home to thousands of antelopes, blackbuck, chinkara and nilgai, and on this bounty lived the tribal bheels. यहाँ के मैदानों में या ये मैदान हजारों भारे सिंहों, कृष्ण मृगों, चिंकारों तथा नील गायों के शरण स्थल थे और इतनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध इन्हीं सामग्रियों पर आश्रित भील जनजाति यहाँ रहती थी। About 3000 years ago, hordes of cattle keepers began to pour into India from West and Central Asia. लगभग 3000 वर्ष पूर्व पश्चिम व मध्य एशिया से पशुपालकों की भारी भीड़ भारत में उमड़ने लगी। Some of them spread into मारवाड़। उनमें से कुछ मारवाड़ में फैल गए। The Bheels resisted their encroachment, but the invaders had horses and superior weapons and pretty soon took care of the Bheels. भीलों ने उनके अतिक्रमण का विरोध किया, किंतु आक्रमणकारियों के पास घोड़े और श्रेष्ठ हथियार थे और शीघ्र ही उन्होंने भीलों पर काबू पा लिया। In any case, the land appeared boundless and the Bheels retreated a little towards the Aravallis. जो कुछ भी हो, भूमि असीमित प्रतीत हुई और भील विवश होकर अरावली पहाड़ियों की तरफ कुछ पीछे हट गए। The population of Marwar was on the increase. मारवाड़ की जनसंख्या वृद्धि की ओर थी, मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि उस समय हुई। But as centuries passed, किंतु ज्यों-ज्यों शताब्दियां गुजरती गईं, the large herds of cattle began to affect the vegetation. मवेशियों के बड़े-बड़े झुंडों ने वनस्पति को प्रभावित करना शुरू कर दिया। The seedlings and saplings were grazed down and had little chance to grow. अंकुरित पौधे व छोटे पेड़ों को चर लिया गया और उनके उगने के अवसर बहुत कम रहे। Invaders and the tribal Bheels found less and less to sustain themselves. आक्रमणकारी एवं जनजाति भील को अपने भरण पोषण करने के लिए भी कम भोजन मिलने
लगा। Finally, the 13th century AD saw the final conquest of the Ghils by the Rathod of Kannauj। अंततः 13वीं शताब्दी में घीलों पर कन्नौज के राठौड़ों की अंतिम जीत देखी। The Rajputs now ruled the food of मारवाड़। अब संपूर्ण मारवाड़ पर राजपूत शासन करने लगे। In the year 1451 AD, during the reign of Ram Jodhaji, one of the bravest of the Rathod kings, an extraordinary child was born in the village of Pipasar। वर्ष 1451 में सर्वाधिक वीर राठौड़ राजाओं में से एक राम जोधाजी के शासन के दौरान पीपासर गांव में एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ। His father was the headman ठाकुर लोहर and his mother was हंसा देवी। उसके पिता सरदार ठाकुर लोहर और उसकी माता हंसा देवी थी। The boy was called जामभाजी। बच्चे को जामभाजी के नाम से पुकारा गया। As a little boy, he was given the task of looking after his father's large herd of cattle and sheep। छोटे बच्चे के रूप में उसे अपने पिता के मवेशियों और भेड़ों के बड़े झुंड की देखरेख का कार्य सौंपा गया। It was great fun to take the animals out grazing, lie in the shade of a cedar tree, and watch the herds of black buck। पशुओं को बाहर ले जाकर चराना, खेजड़ी के पेड़ों की छाया में लेटना और कृष्ण मृगों के झुंडों को निहारना जामभाजी को बहुत अच्छा लगता था। जामभाजी was fascinated by the lithe grace of this handsome antelope। सुंदर बारहसिंहों की मनोहारी चाल की शोभा पर जामभाजी मोहित हो जाते थे and thought that there was no sight more enthralling than a fight between two well-grown steeds। और उनके विचार से पूर्ण वयस्क दो नर हिरणों की लड़ाई से अधिक ध्यानाकर्षित करने वाला दृश्य कुछ भी नहीं था। When Jambaji was 25 years old, a great disaster overtook the whole region। जब जामभाजी 25 वर्ष के थे तो संपूर्ण इलाके पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई। The small quantity of rain that used to come regularly ceased altogether। थोड़ी सी वर्षा जो नियमित रूप से हुआ करती थी वह पूर्ण रूप से बंद हो गई। The worst sufferers were the cattle। मवेशी सर्वाधिक पीड़ित थे। In the first year of drought, they could eat the bajra straw stored in the houses। सूखे के प्रथम वर्ष में तो उन्हें घरों में भंडारित किए बाजरे का भूसा खाने दिया गया या मिलता था। The second year was very bad और दूसरा साल बहुत बुरा था। There was not a blade of glass left standing anywhere। कहीं भी घास का
people had any tree, they could find and fed the animals on the leaves, but even so, there was not enough ground for all the hungry animals. लोगों को जो भी पेड़ मिलता उसी को काटते और पशुओं को पत्तियां खिलाते। किंतु इस पर भी सभी भूखे मवेशियों के लिए खिलाने की पत्तियां पर्याप्त नहीं थी। एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड फॉर 8 consecutive years और सूखा लगातार 8 वर्षों तक जारी रहा। कितने वर्षों तक? 8 वर्षों। एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड फॉर 8 consecutive years। ड्रोट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ड्रोट का अर्थ होता है सूखा। एक हम फेमिन वर्ड भी यूज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर वर्ड है इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट ENCROACHMENT इसका अर्थ होता है अतिक्रमण। रेजिस्ट या ऑपोज इसका अर्थ होता है विरोधी या प्रतिरोध करना। एक है इन्वेडर्स। इन्वेडर्स का मतलब होता है अटैकर, आक्रमणकारी, आक्रांता या हमला। एक वर्ड है सुपीरियर। सुपीरियर का ऑपोजिट कई बार एग्जाम में पूछा है और इसका ऑपोजिट होता है इंफीरियर। क्या होता है? इंफीरियर। INFERIOR इंफीरियर। तो यह कुछ इंपोर्टेंट वर्ड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का ऑपोजिट होता है ऑर्डिनरी। ओके, तो ये कुछ इंपोर्टेंट वर्ड है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, साथ साथ में इसको पढ़ रहे हैं। और जो सिंपल पास्ट टेंस का लेटर यूज हो रहा है, आप स्पेलिंग के साथ साथ में यूज हो रहा है। आप स्पेलिंग मीनिंग को याद करने की कोशिश करें। आज हमने इस पैराग्राफ तक पढ़ा, कल से हम अगले पैराग्राफ से स्टडी करेंगे और आप नियमित रूप से वीडियो देखते रहे, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।